अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अली रज़ा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम और आप। आज जना पार्क में पहुंचा हूं, फैमिली फेस्टिवल लगा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जिंदा ज़ना फैसलाबाद के लोग अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पे पहुँचे हैं। लोगों से बात करते हैं उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है और मौसम चेंज होते ही फेस्टिवल का भी अहतमाम किया गया। चलते लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनकी 4 शादियाँ हुई हैं जी, और हेलमेट वो घर में भी पहनते हैं बाहर से। अच्छा, बाहर की तो समझ आती है कि चलान हो जाता है हेलमेट के साथ, घर में क्यों चलान पहन के रखते हैं ये जानते भाईजान। बाहर तो चलान दा रौला जी जी घर ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ 4 ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਘਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ? ਹੋਰ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਈ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਬੱਚੋ ਕੋ ਮੇਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ, ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਦੀ? ਝੂਠ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੂਸ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ? ਓ ਯਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਤੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਦੱਸਣੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਆਕਰ ਆਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਫੈਲਾਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋ ਬਾਹਰ ਕੋ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਕੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ? ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਧਰੋਂ ਚੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ? ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ, ਲਾ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨੂਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਓਏ, ਚੰਡਾ ਖਵਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣਾ ਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ 4-4 ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਬਣੇ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਆਈ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਫਿਰਨ ਆਇਆ। ਓ ਯਾਰ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ? ਰਾਣਾ ਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਲੋ। ਅੱਛਾ, ਰਾਣਾ ਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਲਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬੈਰ ਭਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਰੱਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਸਿਹਤ ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਚ ਰੂੰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਜਪੂਤ। ਜਿਹੜਾ ਰਜਪੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਜਪੂਤ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਰਜਪੂਤ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ 4-5 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸਲਾਮ 'ਚ 4 ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉਰੇ ਪਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਕਰ। ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ? ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਗਾਂ ਅਗਲੀ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ। ਕੈਸੀ ਆਫਰ? ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰ। ਛਾਲ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿ 4 ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ, ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਰਜਪੂਤ ਤੇ ਡਰਪੋਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਪੂਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸਣੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗਦਾ ਰਜਪੂਤ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਵੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੰਦਮੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਾਣੇ ਵੀ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵਲੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਕਰੀਮਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ, ਦੂਸਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਧੱਫੜ ਕਢਾਏ ਤੁਸੀਂ? ਧੱਫੜ ਯਾਰ, 4 ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਧੱਫੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਧੱਫੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲਓ ਜੀ, 4 ਨਵੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਫਿੱਟ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਧਰੋਂ ਤੇਰਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੌੜਨਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕੋ ਦੌੜਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੌੜਾਉਣਾ ਕੋਈ ਡੰਡ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਸੀ? ਓਏ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੌੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਦੌੜੀ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਖੜੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਕੋਈ।
ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਝੂਠ ਨਾ ਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ 4 ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਓਕੇ? ਸਕਿਪ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਕਿਪ ਪਿਛਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਦੁਬਈ ਤੇ 7-7 ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਆ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਣੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਐਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ। ਸਭ ਹੈਲਮਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ? ਯਾਰ ਹੈਲਮਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਲਮਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਹੋ ਕੈਬ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ 5 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾ। ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਰੱਖ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ? ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ मैं शादी का उम्मीदवार हूँ, बयान दे दो। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾਏਗਾ ਤੂੰ। मैं शादियां ਦਾ उम्मीदवार ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ? नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੈਮ ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ? ਤੈਨੂੰ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਲੈ ਵਾਮ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਾਂ? ਪਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਗਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਸਨੋ ਕੁਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਭਾਈ? ਕੋ ਦਿਖਾਓ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਭਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ, अस्सलाम वालेकुम। आप अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? आप जी, क्या करती हैं, क्या नाम है आपका और किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है? मेरा नाम फ़िज़ा इरफान है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जीसी यूनिवर्सिटी में फ़ैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। और हमने ये आज डिजिटल प्रिंटिंग का स्टॉल लगाया है जिसपे शॉल्स हैं, और हमने एप्लिक और डिफरेंट क्राफ्ट्स के साथ अपनी स्वेट शर्ट्स और जैकेट्स तैयार की हैं। मैम एक मुझे बात बताएं, ये लड़कियों पे इल्ज़ाम है कि ये हाथ ज़्यादा अगर काम पे करें तो ज़्यादा सही नहीं? हम काम ही अपना लगाया हुआ है, हम डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट। आप मतलब हैंडमेड कर? जी, ये सारा पूरी क्लास का काम है ये। आपने कौन सी चीज़ बनाई? मेरी शॉल थी, वो सेल हो गई, और मेरी जैकेट भी। अच्छा, खरीदो फरोख्त भी कर रहे थे? जी, मतलब दिहाड़ियाँ शहाड़ियाँ भी लग रही हैं। अच्छी चीज़ है कि मतलब कोई आ रहा है साढ़े को चीज़ों को खरीद। जी, मुझे एक बात बताएं, हैंडमेड में और दूसरा जो मशीनरी में कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। हैंडमेड चीज़ जो होती है वो एक आपकी हेरिटेज, आपकी सकाफ़त को शो करती है, जबकि मशीनरी तो किसी आप और कंट्री में जाके भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी सूबे की या किसी शहर की, किसी जगह की कोई सकाफ़त देखनी है तो आप वहाँ से जाकर उसकी हैंडमेड चीज़ ही लेंगे, ना कि मशीन की बनी हुई चीज़। आप एक बात है ज़रा, कहते हैं कि कोई भी जब हैंडमेड करता है तो उसका कोई ना कोई स्केच होता है, कोई मकसद होता है कि ये इस मकसद के लिए बनाइए, इस मकसद के लिए बनाइए। इनमें ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका कोई थीम है कुछ चीज़ों का? ये जितनी भी हमारी शॉल्स हैं ये मुग़ल थीम की हैं, और हमने इन पे सब्लिमेशन और डिजिटल प्रिंटिंग करवाई है। और जो हमारी ये स्वेट शर्ट्स हैं ये हमने सस्टेनेबल मटेरियल से बनाई हैं। इन पे आपको जितना भी वेस्ट मटेरियल और डेनिम जैकेट्स जो आप घर में कपड़े नहीं पहनते या वेस्ट मटेरियल जैसे इंडस्ट्रीज़ में होता है उनको यूज़ करते हुए हमने इनके ऊपर एप्लिक की है और एम्ब्रॉयडरी वगैरह की। मतलब कहने कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ।
मेरे नाल इत्थे एक आर्ट डिज़ाइन है, पता नहीं हुण फुफियां वाला वा या मुंडियां वाला वा। आप ये कौन सा स्टाइल है? ये एक्चुअल में ये जेंजी स्टाइल है और ये दूसरे लोगों को समझ नहीं आएगी ये मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपका ये डिज़ाइन है तो ये क्या सोच के बनाया? ये तो हमारी दादियाँ होती थी वो बनाती थी, ये क्या बनाया आपने? तो आजकल मॉडर्न एज में ना ये क्रोशेट का वर्क बहुत कम हो चुका है, मतलब ज़्यादा, लेकिन हमारी जनरेशन जो है इस चीज़ को बहुत पसंद करती है कि हम पुरानी चीज़ों को फैशन में लेके आएँ। तो हमारा बेसिक पर्पज़ ये था कि हमने क्रोशेट के जो थे हमने पैचेस लिए थे, ये सस्टेनेबिलिटी इसमें हमने यूज़ की। ये सारे पुराने हमारे पैचेस थे, इसको हमने फैशन में कन्वर्ट किया है और ये जेंजी थोड़ा सा इसको स्टाइल देने की कोशिश की है। सच्ची बात बतानी है, झूठ नहीं बोलना। कितनी इन्वेस्टमेंट होती है इस चीज़ पे, कितनी इन्वेस्टमेंट है? स्वेटशर्ट जो थी ये हमें हमारे टीचर ने प्रोवाइड की थी और इसके ऊपर जो मटेरियल हमने लगाया वो हमारा अपना था, वो हमने खुद बाय किया था, खुद परचेज़ करके खुद इस पे सारा काम किया था। तो अराउंड लाइक 1500 to 2000 हमारा इस पे कॉस्ट आई थी और इसमें हमने अपना प्रॉफिट कम ही रखा है, 1 to 200 बस प्रॉफिट रखा है। मुझे एक चीज़ और बात बताने, कभी कभार बंदे ऐसे बनाते थक जाता है तो अम्मी कहना अम्मी जरा तुम 2 हत्थ मारो को, ऐसे भी हुआ है? हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हुआ, ये इजी था तो ये हमने खुद ही ऐसे अम्मी से काम करवा लेते? मोस्टली हो जाता है। अम्मियाँ कर देती? जी कर देती हैं, वो कुछ हो अगर बंदा खुद थक जाए तो उनको काम आता हो वो तो करवा लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मोस्टली हमारी इस तरह की असाइनमेंट्स होती हैं कि वो सिर्फ हमसे ही होती हैं तो उनको नहीं पता होता तो फिर हम खुद ही कर लेते हैं। आप ये एक आखिरी सवाल है आपसे, वो ये कि न्यू जनरेशन खासकर गर्ल्स जो कहती हैं कि हमें जॉब्स नहीं करने आती, हम बाहर नहीं निकल सकती, हमें कोई प्रॉब्लम है, गारमेंट्स का या आप हैंडमेड कर रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मेरे ख्याल में कि अगर इंसान के पास पैशन है, उसने कुछ करना है तो वो किसी भी चीज़ के साथ अपना आगाज़ कर सकता है अपने काम का। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है कि सस्टेनेबिलिटी है, इसमें कोई इतना एक्सपेंसेस नहीं आता आपका। आप इंडस्ट्री से अपने ख़रीदें अपनी स्वेटशर्ट्स वगैरह, आप उस पर काम करें। जेंजी हमारी जनरेशन है वो हैंडमेड काम और इस तरह की सस्टेनेबिलिटी वाले कामों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पहनने की कोशिश करती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आइडिया है और लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो कुछ ना कुछ अपना करती रहें, अगर वो बेशक बाहर नहीं जा रही। और जैसे ये डिजिटल प्रिंट है हमारे, अगर लड़कियां डिजिटल डिज़ाइन बनाना सीख लें और वो डिज़ाइंस की अपनी फाइल्स भी सेल कर सकती हैं और उससे भी अच्छा खासा अर्न कर सकती हैं। एक हमारे साथ बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, वो मौजूद है। सर क्या हाल है? जी अलग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी हाथ वालियाँ शावां दोबारा नहीं मार्केट आ गई हैं? हाँ ये बड़ा वैसे ना जी एक यूनिक लोगों के लिए देखने को चीज़ मिली है और लोगों ने जो कुछ इतनी मेहनत से जो स्टॉल बना रखे हैं ना जी, काबिल रश्क है जी वैसे जी। और बिलखसूस ये जो बच्चियाँ हैं ना, इन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैंडमेड बना रखे हैं। तो आप समझते हैं कि बच्चियों को ऐसे काम करना चाहिए? कोई हर्ज नहीं है इसमें, बच्चियाँ मेहनत कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगा इनका? हाँ अभी जो बातें पूछा है कि आप फट गया कि तो वो तो नहीं अच्छा कौन सा अच्छा? वही अच्छा लगा? वही बहुत अच्छा था। वो डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है, मैंने पहली दफ़ा देखा है। ऐसे ही है। पता नहीं बढ़िया ही पहली दफ़ा ओ पहली दफ़ा देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसी कोई सेकंड है। सेकंड टाइम देखा जाएगा इसकी कीमत कितनी है। क्या मैसेज देंगे बच्चियों के लिए? बच्ची ने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया कि जो लड़कियां घर में बैठी हैं वो समझती हैं कि बाहर या कुछ नहीं करना, तो आप घर में बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल जी, ये बात इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चियाँ घर में बैठ के भी कर सकती हैं, बाहर आना भी निकलना भी कोई ऐसी बात नहीं है कि ना निकलें। जैसे इन्होंने स्टॉल लगाए हैं, बच्चियों ने बड़ी मेहनत की है, तो ये एक मोटिवेशन है उन फीमेल्स या उन बच्चियों के लिए जो कहती हैं जी हम क्या करें, कैसे करें, नहीं कर सकते हमें, तो ये बड़ी अच्छी मोटिवेशन है, करना चाहिए। आप एज ए मैसेज इस जो फैमिली फेस्टिवल हुआ है उसके लिए क्या कहें? फैसलाबाद के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है जी, लोगों को रिफ़्रेशमेंट के लिए बहुत कम मौके मिलते हैं, सिवाय इस जिना गार्डन के फैसलाबाद में और कोई ऐसी जगह नहीं है। और यहाँ पे ये इस तरह का ये फेस्टिवल लगाकर जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने बहुत अच्छा फैसलाबाद के लिए काम किया है। आइंदा होने चाहिए। ज़रूर होना चाहिए बेटा। थैंक यू सो मच सिस्टर, बहुत ही अच्छा आपने काम किया। अगर मेरा को देखता दुखता इतने आ जाए तो देख लो, बड़ा अच्छा माहौल किया आज। तो थैंक यू सो मच सिस्टर। तो ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और अभी लोगों से बात करते हैं।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਚਲਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲਾਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲਾਕੋ ਮਾਸੀ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਕੇ? ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪ ਸੁਣਾਏ। ਕਾਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਵਕਤ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਬਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਡਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ पंजाबी से चंडा भी मार देनी है। नहीं लड़ाकी शड़ाकी नहीं, हाँ हूँ, लेकिन उनके साथ जो लड़ाई करते हैं, अदरवाइज मैं लड़ाई। अच्छा लड़ाई आप लड़ाई करती हैं? हाँ करती हूँ। कोई लड़ाई वाले कपड़े भी रखे अपने? नहीं कपड़े शपड़े जिस हुलिये में उसी हुलिये में। किसी टाइम भी लड़ाई हो सकती? किसी भी टाइम किसी के साथ हो सकती है। अच्छा हाँ मुझे एक बात, कोई उंगली करेगा तो जाहिर सी बात है फिर उसको जवाब तो मिलेगा। अच्छी बात है लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए। जाहिर सी बात। अगर कोई बंदा आगे यहाँ पे बात करके चला जाए, उसको बात करने का मौका तो दे, लेकिन उसके बाद में जुबान खींच ले। कुछ भी है। अच्छा जबान खींच ले, ये जबान खींचने की लोड़ की क्यों? जो अगर आप उंगली या कोई बात करता है तो फिर उसको उसके घर तक पहुंचाए, ऐसे कोई छोड़ देना चाहिए। लड़की है तो क्या जो भी आएगा बात करके चला जाएगा। गलबात शुगल दी पर करनी जरूर आ। हाँ एदियां जुआं देखिया नु कितना चिर? मेरी दोस्त है, अभी नहीं बनी है, आज के दिन में बनी है। इसके साथ मेरा कोई यारी, मेरी एक दोस्त है वो घर रहती है, 4.5 साल की उसके साथ यारी है, वो उधर है समुद्र। नहीं समुद्री उसकी जुआं देखी? नहीं किसी ने नहीं देखी, हमारी पड़ती ही नहीं है। आपने बताना सच्ची वाले, झूठ नहीं बोला। जुएं इसकी देखी कभी? नहीं हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले हैं। पूरी खलोते दोस्त ही? नहीं हमारी जो आपस में बहनें हैं ना वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्टीज हैं। और हम दोनों सिर्फ कांटेक्ट तक किए हैं, लेकिन आज हम दोनों फिजिकल मतलब हम मिले हैं आज। हमारे हाथ लग गए हैं। कोई मसला नहीं है बेटा, लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी खुल्लम खुल्ली बात बता। नाम तो पूछे यार लोग। नाम क्या है आपका? मेरा नाम फाकिहा मिनाहिल। मैं कहा शुक्र है कि ते नूरी नात नहीं कहता। लोगों को समझ नहीं लगेगी, मैं फिर बताती हूँ। फाकिहा मिनाहिल। फातिहा फाकिहा फातिहा फाकिहा फातिहा हाँ, फाकिहा फाकिहा। हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम। आपका नाम बेटा? नूर फातिमा। नूर फातिमा, बहुत ही अच्छा नाम है। मुझे एक और सवाल है तो मैं बहुत करने हैं मैंने सर वो तुस्ता है जो लड़ना ही करो। लड़ने नहीं है, मुझे मेरी बहन का डर है, पीछे दौड़ती हुई जूती आएगी। अच्छा कोई छठवां क्लास आ जाता? हाँ घरों मार खादी नु कितना चिर? मुझे 3-4 साल हो गए। हाँ नहीं सच्ची, लास्ट टाइम 2000। जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ गुफ्तगू है ना मैनू लगता अजे हुणे किते चंडा खा के आई। गालियाँ ऐसी पड़ती है कि वो चपेड़ों में रखती है बराबर, लेकिन झूठ नहीं बोलना। आपने लास्ट टाइम कब? मुझे मार नहीं पड़ी, लेकिन अभी जब हम यहाँ आने के लिए रेडी हो रहे थे तो मम्मा से अच्छी खासी डांट पड़ी है कि मम्मा कहती है अब निकल भी जाओगे 2 घंटे हमें मुझे और मेरी अम्मी भी कहने निकल जाओ। बहुत होती, मैं तैयार नहीं होती, मैं बहुत सिंपल सी हूँ। कपड़े शपड़े पहने, मुंह धोया तो चलो जी लड़को। अच्छी बात है। हाँ ऐसे ऐसे ही बंदे को आना चाहिए। लड़की को तो डर वा के तेन जोड़े कराटे ना हो। लगा के आई है, मस्कारा लेंस सारा कुछ लगा के, मैं कुछ भी नहीं लगा के, मैं सिंपल सी हो के आई हूँ। पसंद है ना इसलिए मैं लगा के आई हूँ। अरे मैंने भी तो बताती हूँ, आपको एक बात बताती हूँ। ये ना इसका थोड़ा गेटअप जो है ना वो बॉयज़ वाला है, ठीक है ना। मतलब इसके घर वाले भी इसको नहीं करते। मेरे घर वाले मैं अपनी आप ही से 12 साल छोटी हूँ, मतलब घर वालों दाद का नान का सब ने मुझे लाडला रखा हुआ है। ऐसी वैरियां खलोतियां में लगता कि दूजे दे वाल फाड़ लेने। नहीं इतनी भी लड़ाका नहीं है हम। लगन डे वो गल करन। दोस्तों के साथ ऐसा नहीं है, दोस्तों के साथ ऐसा सीन नहीं है। अब मुझे एक चीज़ लास्ट एंड फाइनल उसके बाद मैंने कोई और इंटरव्यू करना है। मुझे एक बात बतानी है सच्ची मुच्ची, ये जो ड्रेसिंग होती है प्लान करके होती है कि मैंने ये करना और आपने? ये लड़कियां करती है, लेकिन मैंने नहीं की। मेरी कोई ट्विनिंग के लिए ओए लड़की या तू लड़की हूँ, लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे लड़कों की तरह का बाइक चलाना सिखाई, लड़ाई झगड़ा कराटे वगैरह गन्स वगैरह सारा कुछ चलाना सिखाया हुआ है। मेरा ये सीन है। हाँ लड़की यानी कि इंटरव्यू लो तो हाथ रख के लो ताकि पता नहीं किस टाइम ਤੁਹਾਡੇ जैकी चैन वालियां लत्तां वजणियां शुरू हो जाणियां। लेकिन मैंने एक गल दसो कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कदी मारिया? झूठ नहीं बोल। मिली है अभी रिसेंटली तो मिली है, आज का दिन, आज की दिहाड़ी मिली है मुझे, आज ही तो लभी है। मैं ना इदां डईयां जिदा करण अर्जुन बनी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। आज अभी बताया हमारी जो आपी हैं वो बेस्टीज हैं। हम दोनों का आप ही किधर है? मेरी दोस्त है, वो समुद्री रहती है, उसको पता लगा ना मेरी दोस्त बन गई तो मेरी जान ले ले। नहीं मेरी 4.5 साल की यारी उसके साथ है, वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वही मेरा सारा। चलो बच्चे हो बताओ आप ही लोग वो भी आए? आप कहते हैं तो हम लेते हैं। ना ना से को चंडा पड़ेगी मार नहीं लेके क्यों आना। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ वो आए जहाँ? जी जी वो आए। उन्होंने कहा जाओ फिर उतरो। नहीं ये जिद करके आई है। इसने कहा कि मैं किसी और जगह पर टांग फंसा के आई हूँ, वहाँ पे नूर मेरे साथ चलो, तो मैं इधर आई हूँ। हर जगह मेरी टांग, क्योंकि ये हम उधर वुडन क्या उनकी ना डेकोरेशन पीस थे, डेकोरेशन थी, तो हम उनके स्टॉल पर थे, उनके स्टॉल पे थे। और ये मुझे ज़बरदस्ती लेके ही कहती नूर मैं वहाँ पे टांग फंसा के आई हूँ, तो मेरे साथ चलो। मैंने वहाँ अगर इन्हें जुगत मारनी हो तो की मुझे झुकते नहीं आती। तू अगर जुगत मारनी मैनू आंदी ही नहीं हैगी
कि मैं फैसला बता, लेकिन मैंने झुकता नहीं आती हैं। से पोइट्री कोई सुन मुझे पोइट्री पोएट्री आंदी नहीं ना आती, नहीं आती, पोएट्री नहीं कुछ भी नहीं आता। वेली निकम्मी, खाना पीना सोना पीना जीना आराम किया हुआ घर वालों को, और कुछ भी नहीं। शादी का मुझे बहुत शौक है लेकिन लड़का नहीं मिल रहा। ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਰਸ 'ਚ ਚੰਡਾ ਪਵਾ ਦੇਗੀ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਗੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਨਹੀਂ मैंने घर जाकर घर वालों को भी मुंह दिखाना है। ਕਾਕੇ ਤੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लेनी है। मैं हूँ तो टेंशन लेनी है, अदरवाइज टेंशन। ਐਡੀ ਤੂੰ ਆ ਨੀਲਮ ਕਪੂਰ। वही तो कह रही, मैं हूँ तो टेंशन लेनी है, मैं नहीं हूँ तो नहीं टेंशन लेनी। पूरी बात सुने, ये कह रही हूँ मैं। हाँ ਅਗਲੀਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं, मैं का तो इसका लाइफ का गोल पूछ लें, इसका गोल क्या है? हाँ मैंने ला करना है, ठा ठा करने के लिए, अदरवाइज किसी चीज़ के लिए नहीं ला करना है। सिर्फ और सिर्फ गन लाइसेंस के लिए चाहिए। ਆ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੱਸ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਾਰਦੀਆਂ। मैं शादी के बाद भी ऐसी रहूंगी, बात नहीं चले। मुझे मेरे जैसे घर वाले अगर तेरी मैं एक सवाल दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी सास तुम्हें ना खींचती है, डांटती है, ओए चुप कर ये वो, तो क्या रिएक्ट होगा? मेरी गलती होगी तो मैं चुपचाप कर लूं। अगर गलती नहीं है नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है, खामोश करके अपने घर रुस के आ जाऊंगी। मेरा बंदा मुझे मनाने आ जाएगा, सीधी सी बात है। और मैं जिधर रहना हूँ, मगर मैं कहते ना पानी में रह के मगरमच्छ से वैन नहीं लेते, वो वाला हिसाब नहीं ਉੱਥੇ तेरी उम्र की 17 साल 18 साल ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੰਡਾ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਈਲੈਂਡ ਆ ਸੈਂਟਰ। रिसेंटली अक्टूबर में 17 साल की हुई हूँ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ नसीब अच्छे करे, दुआएं दे। अल्लाह पाक नसीब अच्छे, बेटा नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इसका नहीं इदां ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼, ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਸੱਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੀ मुझे फोन करेगी। नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं अपना घर नहीं खराब करूँगी। क्या करोगे फिर आप? और क्या करेगी? बात रोना ही पड़ता है, और क्या करते हैं? बस रोना ही। जिगरा होना चाहिए घर छोड़ के आने का, बंदा मनाने का। बंदे को मुट्ठी में रखना चाहिए, फिर बंदा सारा सेट रहेगा। नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, होता है। इंसान ने जिंदगी गुजारनी हो ना, सबसे पहले उसके जो बड़े होते हैं ना, माँ बाप होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है सबसे पहले, फिर जाके कहीं बात बनती है। सीरियस है, मैं फनी हूँ। नहीं आप सीरियस है, फनी है, पर मैं हिसाब लाया ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੁਰਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ जैसी इसके जैसी, मेरे जैसी नहीं, इसके जैसी। मैं तो कह रही हूँ अपना गुर्दा सेल करके मुझे 17 प्रो मैक्स ले दे। कहता नहीं मैं जिंदा रहना, मैं मरना नहीं। मेरा फड़ ला है, मेरा फड़ ला ਇਹ ਗੁਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਰੌਲੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਆ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾਲ, ਲੇਡੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਆ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਆ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਖਿਲਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਆ, 6 ਵਜੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਆਣ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਘਰ। ਹਾਂ 8 ਵਜੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ। ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਰੋਕਦੀ, ਬਈ ਆਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਏ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਮੇਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ
ਹੁਣ ਬਸ ਰਿਕਸ਼ਾ ਫੜਨਾ ਤੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਖਵਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਛ। ਇਹ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਮੈਨੇ ਦੀ ਡਾਈਟ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਹੋ ਲਾਂਗਾ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋਏ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। लेकिन मैंने एक चीज़ गल सुनी है काके, वो ये कि कब से दोस्त? हमारी 7 साल हो गए हैं। 7 साल सब तो ज़्यादा भुख किन्ने कटी? झूठ नहीं बोलना, सच्ची दसना। दोनों अगर झूठ बोले तो यहाँ पे फोड़ा निकलेगा। दोनों ने बहुत भुख कट्टी है। साढ़े घर वालियां तक ये पैगाम पहुंचा दो कि साड़ी पॉकेट मनी च इजाफा किया जाए। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ। नहीं तो काके भुख लफ्ज़ मेरा फिर होते भुख किन्ने कटी दो? बहुत कट्टी है। रज के रोटी कितों खाधी? नहीं रज के रोटी ईद ਤੇ ਖਾਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖਾਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਘਰੋਂ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ नहीं। वैसे आप किस जगह पे हो? ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ और बताएं, हम अपनी दोस्त के बारे में एक मैसेज देना चाहते हैं। अब ये हम दोस्त हैं तकरीबन 7 साल से हैं। मिले भी अचानक ही और अब बहुत अच्छी अच्छी मेरी दोस्त बन चुकी है ये। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ और बतानी है। एडी केड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀयत, एडा केड़ा जोर चढ़िया सी कि इन्ना यारी ला? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਗੁਰਬਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਲਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾ ਲਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਲਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੁਣ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ? ਜੋ ਪਤਾ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਮੁਨਾਫੀ ਕਾਸ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਲਕਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਆ ਬੱਚੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਤੋੜਿਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਿਓ। ਦੋਸਤੀ ਇਦਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇਮੈਨ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, लेकिन तू थोड़ा ही ना पीछे हो मेरा वीर, मेरे कितने चंड ना मार दी कैमरे तो पल्ली साइड तो। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आ भाई पता नहीं काने दे आ जा तेरा भाई फोन फड़िया वा ते निकल गया, लेकिन मेरे नाल पता दौड़न इदां डे यार, मैं कोई कुट्टन डे इन्हां नूं, लेकिन गलबात ही करनी है। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाईजान गल नहीं करनी, क्या हाल है भाई? क्या करनी है बात? ऐसे ठीक ठाक हैं? अच्छा मुझे ये बात बताएं, कैसा लग रहा है आप यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जितना भी इंतज़ाम किया गया है, हमारे फैसलाबाद को कुछ ना कुछ तो उन्होंने ये इंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है, जिसमें लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो और मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, और ये बहुत सालों के बाद ये चीज़ें शुरू की हैं। अच्छा मुझे एक बात बतानी है, कब होना चाहिए, मतलब आपको कितना टाइम होना चाहिए इस टाइम के बाद होना? ये बेसिकली पहले स्टार्ट होता था फरवरी के बाद में या फरवरी के मिड में जाके स्टार्ट करते थे। अब इन्होंने ये किया है कि विंटर के स्टार्ट में स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में तरह तरह के मौसम है, तो उसमें हर तरह के माहौल में उन्होंने विंटर में, समर में, हर जो है ना सीज़न के हिसाब से मैं कहता हूँ यही उनको अरेंज करना चाहिए। सच्ची दसना, झूठ नहीं दसना। क्या खुद दिल कीता बाहर आने का कि न्याणियां ने किया? मैंने खुद ही किया, मैंने इनको प्लान बनाया इनका। अपना दिल कीता तो न्याणे भी लाए। जाहिर सी बात, उनका दिल भी करता है ना कि यार हमें बाहर लेके। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। वो तो इंटरटेनमेंट होती है, वो कह रहे हैं कि भैया हमें साथ लेके जाएं। मैंने कहा चलो फिर यही चीज़ अच्छी है, यहाँ पे फैमिलीज़ का माहौल। और प्लान आपका बना? हाँ मेरा प्लान बना हुआ था। बेसिकली हम जो फैसलाबाद की चीज़ों को ये प्रमोट करते रहते हैं। मेरा अपना काम भी थोड़ा सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का है, तो थोड़ा सा तो ये हम अपने फैसलाबाद की चीज़ों को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए खुद भी आगे होते हैं। सोशल मीडिया पे हम खुद भी वॉइस ऑफ फैसलाबाद की तरफ से ये चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि फैमिली के लिए बहुत चीज़ें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उस हिसाब से मैंने कहा यार ये होना नहीं पीछे रहना।
नहीं सही है, आना ही आना। आना ही है, आना ही, हर सीज़न में आना है। फैसलाबाद की चीज़ है भाई, फैसलाबादी है, जारी सी बात होना चाहिए। यकीनन आज के प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। मौसम बदला है तो लोगों के चेहरे भी खिल उठे, और ख़ासकर अगर फेस्टिवल मिल जाए तो गल ही गई आ। तो आज के प्रोग्राम में इस नाचीज़ इस बंदे नू अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप।